Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9th, subject social science, and today we are going to discuss chapter number 3rd of history, and the topic is Nazism and the rise of Hitler. This is the lecture 6th. And firstly, we will recapitulate previous lecture. We have discussed about the ideology of Adolf Hitler. And after the First World War, Adolf Hitler became the member of German Worker Party, and after that he formed the Nazi Party. And Nazism was the ideology of Nazi Party. And Adolf Hitler wanted to change his society, and he was against the Jews and mentally and physically disabled person. And he wanted to purify and clean his society. So student, let's start today. Today we will cover some topic. Firstly, we will cover Nazi thought about the motherhood and Nazi cult of motherhood. And after that we will discuss about the art of propaganda. They use different method to enhance their power. And after that we will discuss about the role of media. And after that we will discuss about ordinary people and the crime against humanity. And last we will discuss about the Holocaust. Holocaust means destruction on large scale caused by fire or nuclear war. And after that we will discuss about homework solution, and we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture. And after that we will solve, after that I will give some question in your homework. So student, let's start. And firstly we will discuss about Nazi ideology about the mother. And in last lecture we have discussed about youth in Nazi Germany. They wanted to change his society, and they wanted all schools were clean and purified. So that teacher who belonged to Jewish, and they were dismissed, and German and Jewish children could not sit together to play together. And in Germany many youth league organized by the Adolf Hitler. And after that, Nazi cult of motherhood. In Nazi Germany, young people and even children were repeatedly told that women were radically different from men. They thought that men and women were not equal. And according to the Nazi ideology, the fight for men and women was quite wrong, and it would destroy society. According to the Adolf Hitler, they wanted to change his society, and they believed that men and women were not equal. Men were superior and women were inferior, and it would destroy society. अडोल्फ हिटलर ये मानते थे, इनकी आइडियोलॉजी थी, वो सभी यंग पीपल्स को यही कहते थे कि मैन और वीमेन में आपस में कोई भी क्या है इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और वो मैन और वीमेंस को इक्वल राइट देने के अगेंस्ट थे, और वो चाहते थे कि इनको क्या है इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं करने चाहिए. अगर इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मैन और वीमेंस को, तो इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैन ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और वीमेंस क्या होती हैं, इन्फीरियर होती हैं, यानी वो कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं. तो इसीलिए वो चाहते थे कि कंट्री में कभी भी मैन और वीमेंस को इक्वल राइट प्रोवाइड नहीं किए जाने चाहिए. नेक्स्ट है बेटा, बॉयज वर tough to be aggressive, masculine and hardworking, while according to the Adolf Hitler, they thought to be boys were aggressive, masculine and hardworking, while girls were told to become good mother, bring up pure-blooded Aryan children. According to the theory of Adolf Hitler, they thought girls were soft, and they become good mother, and they bring up pure blooded Aryan children. And they wanted to, women had to maintain the purity of the race, distance themselves from the Jews, look after at the home, and teach Nazi ideology to their children.
According to the Adolf Hitler, they wanted to only women look after their home and teach their children about the ideology of Adolf Hitler, and they become good mother, and they gave प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. उनके अकॉर्डिंग, जो अडोल्फ हिटलर के अकॉर्डिंग, वो मानते थे कि बॉयज़ है या मैन, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वहीं गर्ल्स को सॉफ्ट होना चाहिए और आर्यंस, प्योर आर्यन बच्चों को ही जन्म देना चाहिए. वो मानते थे उनके अकॉर्डिंग विमेंस को केवल क्या है, प्योर आर्यन बच्चों को ही जन्म देना चाहिए, और उनको जीयूस से, यानी जीयूस कैटेगरी, यानी मेंटली फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन थे, और जीयूस कैटेगरी से तो उनको उनसे अलग रहना चाहिए. और विमेंस को कोई भी क्या है, बाहर कहाँ जाके काम ना करके, बल्कि घर पे ही अपने बच्चों को अच्छी सी केयर करनी चाहिए, और उनको अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में उनको सिखाना चाहिए. तो उनके अकॉर्डिंग विमेन के केवल यही काम होते हैं कि वो घर पे रह के अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की क्या करे, केयर करे, और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही क्या करे, जन्म दे और एक गुड मदर बने. आफ्टर दैट, इन 1933, हिटलर डिक्लेयर्ड दैट मदर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, but all mother were not equally treated. According to the Adolf Hitler in 1933, Hitler declared that mother was the most important citizen in Germany, but all mother were not equally treated. उनके अकॉर्डिंग हिटलर ने कहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़न है जर्मनी में, सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़न होती हैं वीमेंस होती हैं, क्योंकि जो वीमेन है वही क्या है, प्योर ब्लडेड आर्यंस बच्चों को ही क्या देती हैं, जन्म देती हैं. लेकिन जर्मनी में भी सभी वीमेंस को इक्वल क्या है, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था. दोज मदर हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड, गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, कंसेशन इन शॉप, थिएटर एंड रेलवेज. जो विमेन डिज़ायरेबल चिल्ड्रन, यानी कि प्योर आर्यन बच्चों को जन्म देती थी, उनको अवार्ड दिए जाते, जैसे आर्मी में या सोल्जर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, वैसे ही मदर्स को बच्चे पैदा करने पे भी क्या है, उनको अवार्ड दिए जाते थे. और जो प्योर आर्यन बच्चों को जन्म देती थी, यानी कि जो डिज़ायरेबल पर्सन, डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनको क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटी दी जाती थी, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, कंसेशन इन शॉप्स में उनको जो चीज़ें होती हैं वो उनको सस्ती मिलती थी, थिएटर्स में, रेलवेज में उनको टिकट्स क्या होती हैं, बुक कराई जाती, उनको फ्री में ही क्या हो जाती थी, सीट्स बुक कराई जाती थी. तो ये अकॉर्डिंग टू द अडोल्फ हिटलर, दे प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी टू वुमेन who produced racial desirable children. तो उनके अकॉर्डिंग जो प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म देती थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, उन वीमेंस को अवार्ड प्रोवाइड किए जाते थे. उनके अकॉर्डिंग वो मानते थे कि यही वुमेन है जो क्या है, कंट्री में क्या कर सकती हैं, प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को क्या कर सकती हैं, आगे फ्यूचर में भी उनको डेवलप कर सकती हैं. नेक्स्ट है बेटा, हॉनर क्रॉसेस वर गिवन टू encourage women to produce many children. Honor Cross of Bronze was given for producing 4 children, and silver for producing 6 children, and gold for producing 8 or more children. विमेंस को ऑनर प्रोवाइड करने के लिए, ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको क्या है, वो चाहते थे कि दे वांटेड टू, विमेन गेव मोर चिल्ड्रन बर्थ. वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चों को जन्म दे. इसी वजह से उनको ऑनर करने के लिए उनको क्या है, अवार्ड दिए जाते थे. उनको जैसे कि सोल्जर्स वगैरह को, आर्मी पर्सन्स को अवार्ड दिए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो भी विमेन 4 बच्चों को जन्म देती थी उनको ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड किया जाता था. जो विमेन 6 बच्चों को जन्म देती थी उनको सिल्वर मेडल दिया जाता था. और जो विमेन 10 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उनको गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा मानते थे कि मदर ही है जो क्या है, प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही क्या दे सकती हैं, जन्म दे सकते हैं. इसीलिए उन्होंने मदर्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की थी. वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरीज के वुमेन के साथ अलग अलग तरह से उनको हैंडल किया जाता था, कि जो विमेन
ज़्यादा प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म देती, यानी कि डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, थिएटर्स में। और जो भी विमेन 4 बच्चों को जन्म देती थी तो उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। 6 बच्चों को जन्म देने वाली विमेन को सिल्वर मेडल, और गोल्ड जो भी लेडी है वो 8 या इससे ज़्यादा डिज़ायर बच्चों को जन्म देती थी, उनको क्या है गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता था। क्योंकि वो चाहते थे कंट्री में, क्योंकि अडोल्फ हिटलर चाहते कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जर्मन पीपल हो, डिज़ायरेबल पीपल हो, जिसकी वजह से कंट्री क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है बेटा द आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा। द आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा एंड they use different method to enhance their power, and the Nazism used language and the media effectively to describe their activity. They never used the word skill or murder in their official communication. They never used in the front of media such as skill or murder in their official communication, and they use method of media very effectively. अपने टाइम पीरियड में अडोल्फ हिटलर ने बहुत ही सोच समझ के क्या है मीडिया के सामने क्या किया, एक अलग सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे अपने आप को इफेक्टली प्रेजेंट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी देने के लिए। वो क्या करते थे, दे वो कभी भी किसी भी पर्सन को मारने या उसको किल करने या मर्डर नाम के शब्दों का यूज़ ना करके, बल्कि क्या है मीडिया के अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों को उनको यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो क्या है अपनी पावर को ज़्यादा एनहांस करना चाहते, इसलिए वो क्या है किसी भी गलत वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। नेक्स्ट बेटा मास किलिंग वर कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूस। जब मास किलिंग फॉर वर कॉल्ड, मास यानी जब काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाता था तो उसका नाम दिया जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन। ज्यूस को, जब ज्यूस कैटेगरी के पर्सन को जब मारा जाता था तो उस ट्रीटमेंट को कहा जाता था फाइनल सॉल्यूशन। एंड एंथुनियस फॉर द डिसेबल्ड यानी कि जो मेंटल फिजिकल जो पर्सन है उनके लिए एंथुजियास का यूज़ किया जाता था। एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, उनके लिए इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता था मीडिया के सामने। इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग, इवैक्यूएशन मीन्स निकालना, डिपोर्टिंग मीन्स लोगों को ग्रुप में से निकालना और उनको कहाँ भेजना, गैस चैम्बर में भेजना मरने के लिए। इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर फॉर किलिंग दैम, एंड द गैस चैम्बर वर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया। यानी कि किसी भी वर्ड को वो क्या है गलत तरीके से यूज़ ना करके उनको दूसरे मेथड का यूज़ किया जाता है, ताकि मीडिया में भी क्या है उनके बारे में उनके कोड्स वर्ड्स का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने क्या है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट कराने के लिए अलग अलग वर्ड्स को क्या किया था, यूज़ किया था। जैसे मास किलिंग ऑफ ज्यूस है तो उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन यूज़ किया। एंड द डिसेबल्ड पर्सन को मारने के लिए यूथीनिजिया को यूज़ किया गया। एंड द इवेक्शन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर फॉर किलिंग दैम, और गैस चैम्बर को नाम दिया गया डिसइंफेक्शन एरिया। नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपगेंडा। दे वर कंट्रोल ओवर मीडिया, जुडिशरी, इकोनॉमी, एंड दे वर यूज्ड media very carefully. Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. उन्होंने मीडिया को बहुत ही केयरफुली यूज़ किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करे, सपोर्ट करे और उनको वर्ल्ड लेवल पे उनको क्या मिले, पॉपुलैरिटी मिले। एंड नाजी आइडियाज वर सेपरेट थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, स्लोगन एंड लिफलेट्स। जो नाजी के आइडियाज़ थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इमेज का यूज़ किया जाता था। फिर नाजी की आइडियोलॉजी पे काफ़ी सारे फिल्म, उनके आइडियोलॉजी के रेडियो में, पोस्टर, स्लोगन्स में, लिफलेट्स में उनके बारे में बताया जाता, यानी कि अलग अलग पैम्पलेट्स में उनके बारे में बताया जाता था, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाजी को सपोर्ट किया जाता था। एंड सोशलिस्ट वर लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट एंड अटैक एज malicious foreign agent. Those person belong to socialist and liberal category. They were represented as weak and degenerate and attack as they were foreign agent. जो भी पर्सन सोशलिस्ट और लिबरल्स पार्टी से बिलोंग करता था या दोज पर्सन हु अगेंस्ट द हिटलर पार्टी,
उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनको फॉरेन एजेंट के नाम से उनको क्या है मजाक बनाया जाता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या है उनको पनिशमेंट दी जाती थी। इसी वजह से जो भी नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था उनको क्या है वीक माना जाता था, उनको क्या है डीजनरेट कह के उनका मजाक बनाया जाता था और उनको फॉरेन एजेंट कह के उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। आफ्टर दैट प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटेड फॉर ज्यूस। काफ़ी सारी फिल्म्स बनाई गई थी जिनका मेन पर्पस था टू प्रोवाइड टू क्रिएट हेटेड फॉर ज्यूस कैटेगरी के लोगों के प्रति उनमें क्या करना हेट करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेट करें। एंड मोस्ट इनफेमस उस समय जो एक फिल्म बनाई गई थी जो मोस्ट थी उन्होंने जो उसमें यूज़ किया था इटर्नल ज्यू। उनका मेन पर्पस था ज्यूस के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, इसी वजह से उन्होंने फिल्म बनाई थी इटर्नल ज्यू। And in Nazi Germany, Orthodox Jews were stereotype according to the Adolf Hitler। वो मानते थे कि जो Jews है वो ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप है, पुराने टाइप की हैं, उनको मार्क किया जाता था। एंड Jews were referred to insect and rats and pests। और जो Jews को क्या है उनकी कंपैरिजन की जाती थी कीड़े मकोड़े से। इंसेक्ट हैं कीड़े मकोड़े चूहे यानी गंदे गंदे जो कीड़े मकोड़े उनसे क्या है ज्यूस वर्ग की कैटेगरी की तुलना की जाती थी कि कंट्री में इनकी वैल्यू क्या है कीड़े मकोड़ों के समान है, हमें इनके साथ क्या है इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। इसी वजह से जर्मनी में ज्यूस के साथ बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था मिसबिहेव किया जाता है। दे वर शोन विथ फ्लोइंग बर्ड्स वियरिंग कफ्तान एंड हाउएवर इन रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश द जर्मन ज्यूस फ्रॉम द अदर जर्मन। जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने मीडिया में इस तरह से ज्यूस कैटेगरी को इस तरह शो किया था जैसे कि जो ज्यूस थे उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बियर्ड्स मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, उन्होंने बड़े से कफ्तान क्या होते हैं बड़े से चोला पहना हुआ, बड़ी सी ड्रेस पहनी हुई है जो एक जैसे कि भूत की तरह दिखते हैं, उनकी जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा क्या है बेकार है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश द जर्मन ज्यूज फ्रॉम द अदर जर्मन। ये डिफ़िकल्ट था कि जर्मन पीपल और ज्यूज पीपल को अलग अलग करना। वो दिखने में एक जैसे ही होते थे, ज़्यादा उनमें चेंज नहीं होता था, लेकिन जो जर्मन जो आर्य में जन्म लेते थे उनको क्या ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था। अकॉर्डिंग टू द अडोल्फ हिटलर वो मानते कि ज्यूस क्या है वो काफ़ी उनकी जो शक्ल है वो क्या है वो काफ़ी डरावनी है और उनकी जो कैटेगरी है वो चूहे और कीड़े मकोड़े के समान उनको मानते थे और वो मानते थे कि जो ज्यूस हैं वो जर्मन पीपल से बहुत ज़्यादा अलग है। आफ्टर दैट ऑर्डिनरी पीपल, तो अभी तक तो पढ़ा हमने कि जो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है उनका मेथड का जो था ज्यूस का जो मेथड था वो क्या था अलग था और अडोल्फ हिटलर ने अपने आप को सुपीरियर माना था और ज्यूस को क्या माना था इन्फीरियर माना था। आफ्टर दैट ऑर्डिनरी पीपल मीन्स कॉमन पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैनी पीपल वर अगेंस्ट द नाजी पार्टी बट they were not any majority to had no courage to protest. Many ordinary people genuinely believed that only Nazism could bring prosperity and well-being for them. And काफ़ी सारे लोग ये मानते थे कि ऑर्डिनरी की केवल नाजी पार्टी है जेन्युइनली जो क्या कर सकती है कंट्री में चेंज कर सकती है, जो हमारे लिए क्या है बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। बट सम जर्मन अपोज नाजिज्म, लेकिन बहुत सारे जर्मन पीपल थे वो नाजिज्म पार्टी को क्या सपोर्ट नहीं करते थे। बट लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हैड नो क्रेज टू बट देयर वर नो any craze to protest against the Nazi party. So इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों में मेजॉरिटी की क्या थी काफ़ी कमी थी, इसी वजह से उनमें क्या था नाजी पार्टी के अगेंस्ट जाके इनके क्या के अंदर कोई भी क्रेज़ नहीं था, उनके अंदर साहस नहीं था कि वो उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सके। इसलिए उन्होंने क्या है चुपचाप रह के क्या है नाजी पार्टी की सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था और सारी पनिशमेंट को उन्होंने सहा था। आफ्टर दैट चार्लोट बैड्रेट इन हर बुक, उन्होंने अपनी एक बुक में रखा था जब वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब नाजी पार्टी फॉर्म की थी तो उन्होंने बाद में हिटलर के सभी कामों के बारे में उन्होंने एक बुक्स में लिखा था। उस बुक का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था ज्यूज स्टार्टेड बिलीविंग द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। उनके अकॉर्डिंग इस बुक में लिखा था कि ज्यूस हैं वे अकॉर्डिंग टू द अडोल्फ हिटलर ज्यूस वर स्टीरियोटाइप, वो थे जो ज्यूस थे वो स्टीरियोटाइप पुराने विचारों वाले थे।
and नाजी प्रोपगेंडा हंटेड द ज्यूस एंड विदर इमेंसली सफर्ड। और नाजी उनका मेन पर्पस था, जो नाजी प्रोपगेंडा मेन पर्पस था ज्यूस को उनको क्या करना, परेशान करना, उनको मारना पीटना, उनको कंडीशन बेकार करना। और इसी वजह से ज्यूस की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, क्योंकि वो ज्यूस को क्या मानते थे, अनडिज़ायरेबल मानते थे। इसीलिए उन्होंने मीडिया में, इसी वजह से उन्होंने टीवी पोस्टर में उनको क्या, उनका मजाक बनाया था और उनको ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि जैसे जो जियोस कैटेगरी है वो बहुत ही बेकार है। और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए थे, मेथड यूज़ किए थे। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग क्या ने नाजी पार्टी को सपोर्ट किया था। आफ्टर दैट बेटा, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या होता है, जब बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल, डिस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल, ओके, ऑन द लार्ज स्केल स्पेशली क्योज्ड बाय फायर और न्यूक्लियर वार। जब हम जब काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों में आग लगाई जाती है, उनको क्या है, वॉर क्या, न्यूक्लियर वॉर या एटम बम के द्वारा मारा जाता है, उस सिस्टम को कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। एंड वर्ल्ड बिकेम अवेयर अबाउट द नाजी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स क्यूरल एंड वायलेंट एक्ट। जो नाजी पार्टी तो बहुत ज़्यादा क्यूरल थे एंड बहुत ज़्यादा क्या था, पनिशमेंट प्रोवाइड करते थे ड्यूरिंग द लास्ट रिडिज्म, अपने टाइम पीरियड के, यानी कि जब उनका क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के जो हारने से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, वो क्यूरल हो गए थे और काफ़ी लोगों के वो स्टिक पनिशमेंट देते थे। एट्रोक्रेट्स एंड सफरिंग दैट ज्यूस हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन आर कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट। और जहाँ पे नाजी पार्टी ने काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों को क्या करना था, मारना स्टार्ट कर दिया था, उस सिस्टम को कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। atrocities and suffering that Jews had experienced during the Nazi killing operation। जब नाजी लोग बड़े लेवल ज्यूस को मारना स्टार्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, उस सिस्टम को कहा जाता है होलोकॉस्ट। नेक्स्ट है बेटा, पीपल नो अबाउट द होलोकॉस्ट बाय द डॉक्यूमेंट प्रिजर्व्ड बाय द ज्यूस इन मैनी गेटोज। गेटोज होते हैं जो क्या होते हैं, ज्यूस के रहने के लिए जब अलग सा एरिया जो बनाया जाता है उस एरिया को कहा था गेटोज, क्योंकि देयर वर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ज्यूस एंड जर्मन आर्यन पीपल। और जो एरिया उनके रहने के लिए अलग जो एरिया बनाया गया था उसको कहा जाता है गेटोज, कहा जाता है गेटोज, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे उनके लिए हर चीज़ क्या होती थी, अलग अलग होती थी। एंड बाद में क्या है, हॉलोकॉस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत सारे ज्यूस ने उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया था। एंड द डॉक्यूमेंट इंक्लूड डायरीज, नोटबुक, क्रिएटिव आर्काइव्स होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्या होता है, रिकॉर्ड स्टोर करके रखा जाता है, तो उस सिस्टम को कहा जाता है आर्काइव्स। ओके, तो उन्होंने क्या है, बाद में लास्ट में जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था, तो हारने के बाद कुछ लोगों ने जो उनकी हिटलर की जो बातें थी और जो उस टाइम के जो टाइम पीरियड में जो भी इंसिडेंट हुए, तो उनको क्या है, डायरीज में, नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दिया। और उनके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या आर्काइव में लिखे, जिसके बारे में हमें हिटलर के उसकी डेथ होने के बाद में ही क्या पता चलने लगा था कि वो कैसे अपनी कंट्री में क्या करता था, लोगों के साथ मिसबिहेव करता था। एंड आफ्टर दैट the Nazi leadership tried to destroy all these evidence when they started losing the war। और जब वो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने लगे थे, तो उनके जो नाजी पार्टी के सपोर्टर थे वो दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द ऑल दिस एविडेंस। तो वो चाहते थे कि जो भी एविडेंस लोगों ने बनाए हैं, जो भी डायरीज लिखी हैं, जो भी पैम्पलेट्स बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको क्या, उनको जलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी हिटलर के बारे में किसी को पता चल सके। एंड आफ्टर दैट लेकिन उनकी डेथ होने के बाद कुछ लोगों ने क्या है, उनके बारे में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको सेव करके रखा था। और इसी वजह से टुडे मैनी ऑफ द एविडेंस ऑफ हॉलोकॉस्ट आर केप्ट इन वेरियस म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। और हिटलर के बारे में जानने के लिए बहुत सारे जो उनके हॉलोकॉस्ट हैं, उनके हॉलोकॉस्ट के बारे में जो चीज़ें हैं, जो आज क्या है, काफ़ी सारे म्यूजियम में हमें देखने को मिलती हैं, जो उनके बचे हुए जो एविडेंस हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है हॉलोकॉस्ट, है कि उन्होंने जो बड़े लेवल पे जो लोगों को मारा था, उस सिस्टम के जो एविडेंस है वो क्या है, काफ़ी सारे म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज द एंडिंग ऑफ अडोल्फ हिटलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड दे वर अगेंस्ट द ज्यूस, मेंटली एंड फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन। एंड दे वर अगेंस्ट
to provide equal right to women. They wanted to change his society and they wanted to purify his society. And they wanted to believe to total eliminate of Jews from his country. वो चाहते थे कि Jews को बिल्कुल country में से क्या कर दिया जाए, remove कर दिया जाए. Okay student, and today your homework solution. Question number 1, what was Jungwalk? And you know, these were Nazi youth group for children below 14 years of age. Question number 2, what was the Nazi Youth League and what was its main objective? Answer, Nazi Youth League was founded in 1922 to unify the youth movement under Nazi control. And its main objectives were, first, to educate German youth in the spirit of National Socialism and to train youth to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate undesirables. Third, to prepare the youth to join in defense forces of Nazis. And question number 3, who were considered undesirable by Hitler? Answer, Jews, Gypsies and blank living in Nazi Germany were considered as inferior races who threatened the biological purity of superior Aryan race and were called undesirable by Hitler. Question number 4, explain Hitler or the Nazi policy toward the Jews. Answer, first, the Jews were considered undesirable and were given the lowest rank in the racial hierarchy. And second, children and students were taught to hate Jews. And third, Hitler followed a total elimination policy for the Jews. Aryan girls were not allowed to marry Jews. And question number 5, which youth organization were formed? First, youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of the National Socialism. And second, 10-year-old children had to join Jungwalk. And after that, in 1922, the Youth League of the Nazis was founded. After 4 years, it was renamed as Hitler Youth. And question 6, enlist any 3 components of the ideology of Hitler. Answer, point first, according to the Nazi theory, there was no equality between people but only a racial hierarchy was present. And in this view, blunt, blue-eyed Nordic German Aryan were at the top, while Jews were located at the lowest rank. And third, Hitler racism was borrowed from the ideas of Charles Darwin and Herbert Spencer. Both these scientists introduced the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic conditions. And fourth, Hitler also used the idea of liberalism or living space. He believed that new territory had to be acquired for settlement. And student, today your homework, do following questions. Question number 1, who wrote the book Third Reich of Dreams? Question 2, which terms were used by Nazis for torturing undesirable? And question number 3, explain the meaning of Holocaust. How was it practiced in Germany? Question number 4, what were the ghettos? And question 5, what were the
gas chamber called. And student, all question done in your fair notebook and revise chapter. Thank you.